So in large buildings, apartments and high-rise building, you might have seen the lift. Okay. So today we will discuss a case where a man is inside the lift. What is its weight? So whenever someone is inside the lift, how can be the weight? If the lift is at rest, then what will be the weight of that man? If the lift is moving with an acceleration a in upward direction, then what will be the weight of that man? And the third case will be if the lift is moving downward with an acceleration a, then what will be the weight of that man? Actually, in fact, in all the three cases, the weight will vary. So how it is varying, with what condition, and we will see all the three things with the help of Newton's laws of motion. Okay, so we'll start. So we'll discuss first case. We'll discuss first case. Okay. Acceleration equal to 0. I mean, now the lift is at rest. So let me draw a lift here. See, this is a lift, and man has been stood inside the lift. Okay. Okay. Now you see. Now let us consider this lift is at okay. So we'll consider some three body diagram here. You see, this man will be attracted by earth with a weight of mg. Let us consider the mass of this man is m. Okay, and it is pushing the surface towards downward. So surface will give a normal reaction. Okay, if the question will be what would be weight of man the answer is much more simple. Directly you can see here there are no other forces. Even your lift is at rest. Only two forces exist here. One is your normal reaction upward side, another is your weight downward side. So there are only two forces in j cap direction, or else you can say in y direction. So can we apply Newton's first law of motion and can balance the force? So here we can say N equal to mg. Now consider a situation, you have a weighing machine and you have stood above that weighing machine. So what weighing machine will do? It will show your true weight, right? So actually this weight is this weight actually related with normal reaction. I mean, it is proportional to your normal reaction. The more your normal reaction will be, the more the weighing machine will show your weight. If your normal reaction is reducing, then ultimately your weight also will be reduced. So your weight, you can say your weight is a proportionality with your normal reaction. Okay, if you from today onwards, if someone will ask you what is weight, you have to tell that what normal reaction you are applying to a weighing machine, that shows you the weight. Okay, so weight is nothing but a normal reaction. If you put more normal reaction, then your weight will be large. If you put less normal reaction, then your normal reaction will be if you put less normal reaction, then your weight will be reduced. Okay, so the first case shows that if your lift does not move, I mean if your acceleration of the lift is equal to 0, what is this? This is the acceleration of lift. This also you should not forget. Acceleration of the lift.
acceleration of, hence this man is standing inside the lift, so his acceleration also zero. He is also not moving, right? Your lift is not moving and this man is inside the lift, so both are at rest, right? दोनों ही रेस्ट में है, तुम्हारा लिफ्ट ही मूव नहीं कर रहा है और उसके अंदर जो भी है वो भी मूव नहीं कर रहा है, मतलब दोनों ही रेस्ट में है, मतलब दोनों का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो इस टाइम अगर पूछेगा कि कोई इस आदमी का जो वेट वो है क्या, एक्चुअली तुम बोलोगे क्या, उसको नॉर्मल रिएक्शन के बाद, मतलब उसका नॉर्मल रिएक्शन जितना है उसका वेट उतना ही होगा। तो इसको हम बोलते हैं ट्रू वेट। ये जो चीज है इसको हम बोलेंगे क्या, ट्रू। ओके, चलो इसको नोट करो। अभी दूसरा केस डिस्कस करेंगे, उसको नोट करो। ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, केस 2 डिस्कशन करते हैं। अभी मैं लिफ्ट को ऊपर लेके जाऊंगा, मान लो ये तुम्हारा लिफ्ट है, अभी ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है, सो लेट अस से दिस लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। थोड़ा बहुत तो सबने लिफ्ट देखा होगा, इवन कुछ लोग लिफ्ट में ट्रैवल भी किए होंगे, राइट? सो लिफ्ट का आइडिया थोड़ा होना चाहिए, कैसा मूव कर रहा है, इसका मैकेनिज्म है, दिस इज इंजीनियरिंग। यहाँ पे सीलिंग वगैरह होता है, ऊपर तुम्हारा पुली वगैरह होता है, गियर सिस्टम होता है, वो सब डिफरेंट, वो हमारे स्कोप में नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं। तुम सिर्फ इतना ध्यान दो कि अगर तुम्हारा लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा है तो डेफिनेटली उसका कुछ एक्सेलरेशन है। तो मान लो कि ये जो लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा है ऐसे, उसका एक्सेलरेशन है। अभी दिस लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, यहाँ पे लिखो दिस लिफ्ट moving upward with acceleration। ओके, तो अभी भी अंदर एक आदमी है, तो डेफिनेटली उसको तो अर्थ अपनी तरफ mg वेट से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि तुम्हें पता है जो ये आदमी का मास हम m ले चुके हैं, और ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन। ओके, चलो, क्या मैं पूछ लूं अभी तुम्हें कि ये आदमी रेस्ट पे है? नहीं, ये आदमी अभी रेस्ट पे नहीं। द मैन द मैन इज नॉट एट रेस्ट। क्यों? क्योंकि वो लिफ्ट के अंदर है, राइट? अगर तुम्हारा लिफ्ट ही मूव कर रहा है तो उसके अंदर जो भी होगा वो सब मूव करेंगे ना, इसका मतलब मैन का भी कुछ एक्सेलरेशन है। कितना एक्सेलरेशन होगा? इतना ही होगा। लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा। मतलब अभी तुम्हारा ये आदमी भी मूव कर रहा है along with lift. This man is moving upward along with lift. Okay, तो यहाँ पे वेट होगा क्या? कुछ आइडिया है यहाँ पे वेट होगा क्या? कुछ चलो मैं ऐसे जनरल नॉलेज के लिए पूछता हूँ। यहाँ पे जो वेट होगा, चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये आदमी लिफ्ट पे नहीं था, तभी उसका वेट था कुछ, मान लो मास मान लेते हैं, बाद में तुम उस पे 10 मल्टीप्लाई करके वेट बना लो। उसका मान लो कुछ मास था 60 kg, मान लो इसको ही तुम लोग वेट बोलते हो, गलत तरीके से बोलते हो वेट करके, लेकिन ये एक्चुअली है मास। ओके, इसमें अगर तुम 10 मल्टीप्लाई कर लोगे तो तुम्हारा वेट आ जाएगा। ओके, तो मान लो कि ये आदमी का मास है 60 kg और वेट है कुछ 600 न्यूटन। जब ये लिफ्ट पे नहीं था, मतलब जब वो एक फ्लैट सरफेस पर खड़ा होगा तभी तुमने चेक किया है उसका वेट, और वो कुछ आ गया मान लो 600 न्यूटन और उसका मास है 60 kg। अभी वो लिफ्ट के अंदर जा चुका है, लिफ्ट अभी कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, राइट? तो अभी भी
अगर यहाँ एक वजन करने वाला मशीन तुम रखोगे, एक वही मशीन रखोगे, क्या ये तुम्हें अभी भी 60 kg शो करेगा? ये है मेरा सवाल, क्या अभी भी ये तुम्हें 60 kg शो करेगा? सो व्हाट इज इट्स वेट? तो आंसर है ना, ये तो अभी 60 kg नहीं शो करेगा। तो मतलब करेगा कितना? ज्यादा होगा या फिर कम होगा? ज्यादा होगा। कैसे? चलो देखते हैं। चलो यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ हम अप्लाई करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ का फॉर्मूला है एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे नेट फोर्स, दो फोर्स पड़ा है ना, एक ऊपर पड़ा है नॉर्मल रिएक्शन, एक नीचे पड़ा है तुम्हारा mg। ये वाला फोर्स देख रहे हो ना, ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जा रहा है और ये mg जो नीचे गिर रहा है, राइट? सो हमने देखा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो भी फोर्स तुम्हारा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होता है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। तो n को मान लो पॉजिटिव और दूसरे वाले फोर्स जो कि बचा हुआ है तुम्हारा mg उसको मान लो नेगेटिव। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तुम चाहो तो इसको n प्लस ब्रैकेट में माइनस mg लिख के वो सब काम कर सकते हो, लेकिन हमें उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली, ओके? सो n माइनस mg इक्वल टू mf। तो मान के चलो एक साइड अगर मैंने ऐसा नॉर्मल रिएक्शन रख लिया तो अभी तो ये वाला जो माइनस है ये बाजू जाके वो हो जाएगा प्लस mg। दिस इज व्हाट योर फाइनल रिलेशन फॉर वेट। अगर यहाँ पे तुम्हें कोई पूछेगा कि वेट कितना है तो तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर कभी भी तुम्हारा लिफ्ट ए एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है तो कोई तुम्हें पूछेगा तुम्हारा वेट कितना है, तो तुम्हारा वेट कितना है। व्हाट इज वेट? इट इज सिंपल नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की ही वो, नॉर्मल रिएक्शन को ही हम लोग वेट बोलते हैं, राइट? You can say the weight is nothing but normal reaction. So what is normal reaction? When a lift is moving upward with an acceleration a, so this is what the normal reaction ma plus। चलो कुछ वेरिएबल लेके सॉल्व करेंगे, ओके? कुछ वेरिएबल लेके सॉल्व करते हैं। देखो मतलब कुछ वैल्यू डाल देते हैं, ओके? यहाँ पे तो वेरिएबल है ऑलरेडी, हम कुछ वैल्यू डाल देते हैं। जैसे कि मान लो तुम्हारा इसका मान 60 kg ले लेते हैं। जी का वैल्यू तो तुम्हें पता है, हम ले लेंगे 10, ओके? एक एग्जांपल के तौर पर मैं दिखा देता हूँ यहाँ। और ये लिफ्ट मान लो कुछ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू डालो ना, कितना आएगा? कितना आएगा ये m मतलब 60, ये इंटू 2, ये वापस हो गया 60 इंटू 10, ये 60 10 जा 600, ये हो गया 120। तो इसको अगर सॉल्व करें तो तुम्हारा आपको मतलब आ जाएगा वो 7.2। तो तुम्हारा एक्चुअल वेट है, जो ट्रू वेट है ना तुम्हारा, वो कितना है पता है? 600 न्यूटन है। क्यों? क्योंकि तुम जब जमीन पे थे तो तुम्हारा मास था 60 kg। वेट का मतलब है m into g। तो इससे 10 मल्टीप्लाई करो, अगर इससे 10 मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 600 न्यूटन। मतलब तब जब तुम जमीन पे खड़े रहोगे तब तुम्हारा वेट बनेगा कितना? 600 न्यूटन। लेकिन अब तुम लिफ्ट के अंदर आ चुके हो और ये लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? सो अब क्या होगा? अब ये वेट तुम्हारा 600 न्यूटन नहीं है। अभी तुमने कैलकुलेशन किया और मैथमेटिक्स ने तुमको दिखाया कि तुम्हारा, और फिजिक्स बोलता है कि ये जो तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन है ना, यही तुम्हारा वेट है और ये लिफ्ट जब एक्सेलरेट होता है ना, ये बन जाता है कितना? 720 न्यूटन। सो इसको मैं क्या बोलूंगा पता है? इसका नाम है अपरेंट वेट, ओके? ये वाला जो वेट आगे आया ना, कितना? 720 न्यूटन जो आया, 720 न्यूटन जो आया, उसको हम बोलेंगे कौन सा वेट है? वो है अपरेंट वेट। सो यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे क्या? ये कंडीशन लिखते हैं, चलो बढ़िया सा कंडीशन लिखते हैं। यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे कि अगर तुम्हारा लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन पे, तो तुम्हारा जो अपरेंट वेट है ना, तुम्हारा जो अपरेंट वेट है ना, वो हमेशा ट्रू वेट से ज्यादा आएगा। मतलब यहाँ पे देखो मैं ग्रेटर देन साइन लगा लिया ना,
तो यहाँ पे तुम इसकी वजह से तुमने कभी गौर किया है क्या? कभी कभी अगर तुम लिफ्ट के अंदर हो, अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो तुम्हें ऐसा भारी 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 सा थोड़ा फील होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम तुम्हारा वजन बढ़ जाता है। योर वेट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग दैट टाइम, because here we have seen according to Newton's second law of motion, your apparent weight is greater than 2. किस 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 को पता होगा, थोड़ा लिफ्ट के अंदर थोड़ा लिफ्ट फोबिया रहता है, राइट? मतलब लिफ्ट में ट्रैवल करने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो ओके, सो दिस इज व्हाट, ओके, इसको नोट कर लो। फिर तीसरा वाला केस देखते हैं, केस 2 के साथ। इसको थोड़ा नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फिर तीसरा केस देखते हैं। अभी लिफ्ट नीचे आएगा, हाँ, नीचे की तरफ आएगा, लिफ्ट इज मूविंग डाउन। तीसरा वाला केस, केस 3। चलो यहां से लिखते हैं केस, ये कौन सा केस है? लिफ्ट इज मूविंग डाउन, लिफ्ट इज मूविंग डाउन। ओके, चलो चलो यहाँ पे लिफ्ट का एक ड्राइंग बना ही लेते हैं। अभी लिफ्ट नीचे आ रहा है और कितना एक्सीलरेशन में आ रहा है? इसके अंदर एक आदमी वैसे ही खड़ा है जिसको अर्थ खींच रहा है mg वेट से, या फिर फोर्स बोल लो इसको, और ऊपर है तुम्हारा यहां पर जो होगा ना हमारा न्यू वेट, वो तुम्हारा अपरेंट वेट से ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लगा के हम जो वेट अभी लाएंगे वो तुम्हारा एक्चुअली वेट से भी कम हो जाएगा। ये देखेंगे हम न्यूमेरिकली, हम देखेंगे। और वही वाला एग्जांपल ले लेंगे कि मान लेंगे कि ये आदमी का तुम्हारा मास है 60 kg, ओके, वो वाला ही एग्जांपल ले लेंगे। चलो पहले इक्वेशन बना लेते हैं। क्या करेंगे हम? बॉडी मोशन में एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे हम, राइट? तो चलो लिख लो न्यूटन सेकंड लॉ पहले। ये पूरा बाय हार्ट हो जाना चाहिए ये फॉर्मूला, F net इक्वल टू ma, F net इक्वल टू ma, इस रट्टा मार लो उसको, ये बहुत हेल्प करेगा ये फॉर्मूला। हो गया, F net इक्वल टू ma। चलो पता हो गया होगा तुम्हें, यहाँ पे दो फोर्स है। अच्छा, अभी क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव वाला फोर्स कौन होगा, नेगेटिव वाला कौन होगा? ये तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, ये हमेशा तुम्हें डिसाइड करना है। कैसे? क्योंकि मैंने ट्रिक बता दिया तुमको। एक्सेलरेशन जिस तरफ होगा उस तरफ वाले फोर्स को हम मानेंगे पॉजिटिव। क्या अभी एक्सेलरेशन नॉर्मल रिएक्शन की तरफ है? नहीं, अभी तुम्हारा जो एक्सेलरेशन है लिफ्ट का वो है mg की तरफ। तो यहाँ पे mg बन जाएगा पॉजिटिव, तो मैं पहले लिख लेता हूं mg को पॉजिटिव, नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारा बन जाएगा नेगेटिव। तो चलो मैं नॉर्मल रिएक्शन को नेगेटिव मान लेता हूं, इसको मैं लिखूंगा माइनस इक्वल टू हाउ मच ma। तो एक्चुअली हमारा वेट कौन सा है? ये वाला वेट है ना, नॉर्मल रिएक्शन ही हमें वेट शो करता है ना, राइट? वेइंग मशीन में जो एक्चुअली तुम्हें वेट दिखाता ना वो है नॉर्मल रिएक्शन। तो चलो यहाँ से n को इस बाजू में लेके चला जाऊं तो हो जाएगा वो प्लस, और ये वाला इधर आ जाएगा तो हो जाएगा mg माइनस। ये इक्वेशन वगैरह अभी तुम्हें आ जाना चाहिए, जैसे वो हाई स्कूल के लिए का सिंपल मैथमेटिक्स है यार, स्ट्रेट मैथमेटिक्स है, ओके। सो n इक्वल टू mg माइनस ma। तो वो वाला एग्जांपल ले ले क्या इसको हम मान ले? ये जो आदमी है
इसका जो मास है ना, ये मान लो कुछ है 60 kg। ओके, तो यहाँ पे चलो वेरिएबल में कुछ वैल्यू डाल लेते हैं। अच्छा चलो एक्सेलरेशन कितना लेंगे, कुछ 1 मीटर पर सेकंड पे ले लेते हैं, मान के चलो, ऐसा मान के चलो। तो थोड़ा वैल्यू पुट करो यहाँ पे, 60 into 10, जी का वैल्यू भी मान लो 10, मान लो, एजम्पशन है, मान लो, माइनस 60 into 1, तो ये कितना बन जाएगा, 600 माइनस 60, 540, 540 न्यूटन। ये आदमी का एक्चुअल जो ट्रू वेट था कितना था, 600 न्यूटन। लेकिन कैलकुलेशन करने के बाद, मतलब जब वेट तुम्हारा नीचे, सॉरी जब लिफ्ट तुम्हारा नीचे आ रहा है, तो आदमी का जो अपरेंट वेट है, पता है ना अपरेंट वेट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल रिएक्शन से निकालते हैं। तो इसका जो अपरेंट वेट है वो उससे थोड़ा कम आ रहा है, 540, ऑब्वियसली तुम्हारा 600 से कम है ना, राइट। सो पहले ही हमने यहाँ पे लिख लिया योर ट्रू वेट इज ग्रेटर देन अपरेंट वेट। मतलब कभी भी अगर तुम लिफ्ट के अंदर हो और वो लिफ्ट नीचे आ रहा है विथ सम एक्सेलरेशन, तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि तुम्हारा वजन घट रहा है, तुम्हारा वेट कम हो रहा है, करके तुम्हें ऐसे फील होगा। ओके, चलो ये प्रैक्टिकली कभी फील कर लो। हाँ, कोई भी अपार्टमेंट, जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, हाँ, जो भी अपार्टमेंट में रहते हैं वहाँ तो लिफ्ट होगा ही होगा, नहीं तो कोई शॉपिंग मॉल वगैरह पे कहीं पे भी चले जाओ, वहाँ पे लिफ्ट के अंदर ये थोड़ा एक्सपीरियंस ही कर लो। एक बार अगर ऊपर जा रहा है तो कैसा भारी भारी फील हो रहा है, मतलब तुम्हारा वजन बढ़ रहा है। अगर लिफ्ट तुम्हारा नीचे आ रहा है तो तुम्हारा वजन घट रहा है, तुम्हें ऐसा भी फील होगा, राइट। ओके, ये नोट कर लो, ये वाला केस नोट कर लो। फिर और तो छोटा छोटा केस लिखेंगे, जल्दी हो जाएगा। हो गया, चलो नेक्स्ट वाला केस देखते हैं। एक स्पेशल केस है, दो स्पेशल केस देखते हैं। तो दो स्पेशल केस, बहुत सिंपल सा केस है। चलो इसको केस कोड नाम दे देंगे, वही अभी भी तुम्हारा लिफ्ट नीचे आ रहा है तो लिखो मूविंग डाउनवर्ड। कौन आ रहा है, ओके, जो लिफ्ट है तुम्हारा वो डाउनवर्ड आ रहा है। लेकिन इस बार जो कंडीशन है ना, इस बार जो कंडीशन है ना, तुम्हारा जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है ना, वो g के बराबर है। वो किसके बराबर है, g के बराबर। तभी पूछ रहा है कि वेट निकाल, तब वो पूछ रहा है वेट कितना निकाल। तो वापस यहाँ पे एक आदमी को ड्रॉ कर लो, उसको अर्थ की जगह कितना फोर्स है, mg, और इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n। ओके, तो अगर लिफ्ट नीचे आ रहा है तो उसका इक्वेशन बना लो, नॉर्मल रिएक्शन का इक्वेशन, जस्ट इससे पहला वाला केस का इक्वेशन ले लो, mg माइनस m है, राइट। तो mg माइनस m, क्या यहाँ पे a इक्वल टू g दिया है, मतलब तुम्हारा जो एक्सेलरेशन है वो g के बराबर है, राइट। मतलब लिफ्ट जब तुम्हारा नीचे आ रहा है, अभी वो जो एक्सेलरेशन है वो क्वेश्चन में तुम्हें गिवन है कि वो g के बराबर है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है। तो तुम क्या करोगे, a की जगह g पुट कर लो। क्या यहाँ से mg और mg दोनों कैंसिल हो जाएंगे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0। मतलब कभी भी अगर हम लिफ्ट को अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर एक्सेलरेशन दे दे नीचे आते पर, तो तुम्हें जो फील होगा ना वेट, मतलब तुम्हारा वेट 0 दिखाएगा वही मशीन में, और इसकी जो फीलिंग्स है उसको हम बोलते हैं क्या पता है, वेटलेसनेस।
कभी तुमने ध्यान दिया होगा, अगर तुम मेला वगैरह में कोई झूला वगैरह में बैठे हो, हाँ, अरे हम ओडिया रामदोली बोली कौन आने की सेटा तळू आसला तुम सब फिंगेला वाला लाଗୁଛି ना, so that is why ना ए केस का था केस 4 है, केस 4 नहीं एग्जैक्टली, बट ए टाइप रो बोली हम केस 3 टा ना भाबी हम वेट तुमको कम लागे लागे मुंडो बुलेगो, ओके एटा नोट करो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तबरा आरो लास्ट केस हमें डिस्कशन करिला। Close this case and we will go for your last case, okay? Case 5। अभी थोड़ा एक्सेप्शनल केस है जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी चलो कर ही लेते हैं। केस 5 है हमारा, अभी भी लिफ्ट नीचे ही आ रहा है, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड लिखो, और अभी जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है ना वो 2g के बराबर है। अभी अच्छा ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इंजीनियरिंग में सब कुछ पॉसिबल है, बिल्कुल हम लिफ्ट को कितना एक्सेलरेशन दे सकते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं रहेगा तो अच्छा होगा, वरना वो आदमी मर जाएगा। क्यों, वो अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा तो हम नहीं करने वाले हैं प्रैक्टिकली, सिर्फ पढ़ाने के लिए, मतलब इक्वेशन वगैरह के लिए ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, राइट? पॉसिबल नहीं है मतलब क्या, मतलब अभी कभी भी हम लिफ्ट को अगर ऐसे छोड़ते हैं नीचे 2g के एक्सेलरेशन से, तो हम इतना तो श्योर होंगे कि अंदर कोई नहीं रहना चाहिए, अगर अंदर कोई रहेगा तो मर जाएगा। देखो होगा क्या है, अच्छा लिफ्ट नीचे आ रहा है, ओके नीचे आ रहा है, और उसका एक्सेलरेशन कितना है 2g। ओके चलो यहाँ पे फिर से वेट निकालेंगे, हमारा तो मोटो वही है, ये टॉपिक ही हम वेट के लिए पढ़ रहे हैं। वेट निकालेंगे, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, वही इक्वेशन, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल कितना mg माइनस m। अच्छा mg को mg से लिख लो माइनस m, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 2g, तो 2g डाल लो। अच्छा 2mg और mg से अगर 2 माइनस 2mg से mg जाएगा तो तुम्हारा जो बचेगा वो हो जाएगा माइनस mg, राइट? यही होगा ना आंसर। क्या ये चीज पॉसिबल है? नहीं है। वेट कभी भी थोड़ी ना नेगेटिव तुम्हें शो करेगा। मतलब होगा क्या, ये लिफ्ट नीचे आ जाएगा जल्दी और तुम वहीं रुक जाओगे, मतलब लिफ्ट का छत तुम्हारे सर पर आकर टकराएगा और आदमी खत्म। तो ये वाला तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये वाला केस के लिए इक्वेशन बनाना तो ये लिख लो आप, ये प्रैक्टिकली नीड है ना, यहाँ पे लिख लूँ क्या मैं? हाँ यहाँ पे लिख लेता हूँ ना, दिस इज, चलो इसको लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा ना, प्रैक्टिकली यील्ड मतलब ऐसा हम नहीं करने वाले हैं, रेस्ट्रिक्टेड है, ऐसा हम नहीं करेंगे। ओके हो गया क्या? लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है, एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, एक नया वाला फोर्स देखेंगे। क्या तुम्हें याद है हमने अभी तक क्या क्या फोर्स देख लिया? चलो मैं रिपीट कर लेता हूँ तुम्हारे लिए वंस अगेन। हमने पहले टेंशन डिस्कस किया, उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन डिस्कशन किया, उसके बाद स्प्रिंग फोर्स डिस्कशन किया, जस्ट कल ही हमारा खत्म हुआ स्प्रिंग फोर्स। ओके आज एक अच्छा सा टॉपिक, मतलब लिफ्ट के अंदर जब कोई आदमी जाता है तो उसका वेट कैसे वेरी होता है वो हमने देख लिया। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आता है। अभी फ्रिक्शन देखेंगे, तो अगर फ्रिक्शन देख लेंगे तो हमारा बढ़िया बढ़िया सवाल बन जाएगा फ्रिक्शन के ऊपर, जो कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड है। ओके तो तुम ये लिख लो, फिर मैं मिटाऊंगा और फ्रिक्शन स्टार्ट करूंगा।
आज तो फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन दे दूंगा और जो बचा हुआ न्यूमेरिकल्स अच्छे अच्छे सवाल वो हम कल करेंगे। आज फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। चलो इसको मिटाते हैं। तो हेडिंग डालते हैं फ्रिक्शन। चलो हेडिंग डाल लो फ्रिक्शन। This friction is a contact force. Friction is a contact force. So we'll write the definition of the friction. Friction is that force which opposes the relative motion between two bodies surface में लिख लो हो जाएगा two bodies surface or it opposes if there is a tendency of relative motion। दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। या फिर रिलेटिव मोशन हो रहा हो, भले ही रिलेटिव मोशन ना हो रहा हो लेकिन उनके बीच टेंडेंसी है करने का रिलेटिव मोशन, तभी भी फ्रिक्शन लगेगा। अगर बॉडी एक्चुअल मोशन में है तो भी फ्रिक्शन लगेगा, या बॉडी एक्चुअल मोशन में नहीं है लेकिन उनका काबिलियत है मोशन करने का, टेंडेंसी है, वो कर सकते हैं मोशन लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, मतलब अभी वो रेस्ट पे है, तभी भी तुम्हारा फ्रिक्शन लगेगा। सो क्या होगा उसका डेफिनेशन? फ्रिक्शन इज दैट फोर्स, फ्रिक्शन वो वाला फोर्स है जो कि अपोज करता है किसको ना, कोई भी दो बॉडी के बीच अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन पता है ना, दोनों आपस में ऐसे जा रहे हैं, राइट, या फिर दो सरफेस, या फिर उनके बीच टेंडेंसी हो, मान लो कि वो सच में नहीं मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसे ही है लेकिन इसका टेंडेंसी तो है ना इसको ऐसे मूव कराने का, तो तभी भी तुम्हारा फ्रिक्शन लग सकता है। तो इसको नोट कर लो थोड़ा, बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। ओके, और उसका फॉर्मूला वाइज वो भी देख लेंगे एक डेफिनेशन। तो तीसरा पॉइंट यहां पे मैं आर कर देता हूं, ये जो फ्रिक्शन होता है ना तुम्हारा, एक्चुअली ये ना
तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब सरफेस जितना ज्यादा कांटेक्ट में होगा, नॉर्मल रिएक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा तुम्हारा फ्रिक्शन। ओके, चलो ये तीनों पॉइंट ऐड कर लो, ये तुम्हारा फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन। सो ये बात थोड़ा ध्यान में रख लेना कि टेंडेंसी होना चाहिए वहां पे। सो द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, दिस लाइन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। या फिर बॉडी मान लो तुम्हारा सच में मूव कर रहा है या नहीं भी मूव कर रहा है, लेकिन उनके बीच टेंडेंसी है, तो भी तुम्हारा फ्रिक्शन वहां पे पिक्चर में आ जाएगा। और इसका एक बढ़िया पॉइंट बनेगा, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, वो सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट बना लो। ओके, तो ध्यान से कंटिन्यू करें।